Hello guys, US to accelerate AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile Production that will arm USAF's combat drones F-22 and NGAD fighters. US जो है अपने AIM-260 जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल को प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, साथ में उसको जो है थोड़ा एडवांस करेगा, जो कि आर्म करेगा USAF's कॉम्बैट ड्रोन को F-22 और NGAD फाइटर क्राफ्ट्स को. US Air Force has set no manufacturing goals for JATM. However, the service oversees the developing of this cutting-edge missile, which is initially expected to be deployed on F-22 Raptor, and the latter expected to be equipped on next-generation fighter jet being developed under the NGAD program. US Air Force जो है इसने कोई मैन्युफैक्चरिंग गोल नहीं रखे हैं JATM के लिए, लेकिन जो सर्विस है वो अब देखते हैं डिप्लॉयमेंट करना इस कटिंग एज मिसाइल का, जो कि इनिशियली एक्सपेक्टेड है डिप्लॉय किया जाएगा F-22 रैप्टर पे और बाद में इसको नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स में भी लगा दिया जाएगा, जो कि डेवलप किया जाएगा अंडर NGAD प्रोग्राम. In a more integrating development, Chief of Staff General Charles Q. Brown Jr. said told the Senate Armed Services Committee on May 2 that the AIM-260 JTAM will be equipped on the upcoming fleet of combat drones currently referred to as the Collaborative Combat Aircraft. CCA में यानी जो एयरक्राफ्ट होंगे कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उनमें AIM-260 JTAM को लगाया जाएगा. These drones will be operated by teaming them with a manned fighter jet like F-35A and a 6th generation combat jet currently under development. Moreover, this unmanned aircraft might significantly increase the range of the crewed counterparts if equipped with this missile. तो ये जो ड्रोन होंगे इनको ऑपरेट किया जाएगा टीमिंग के द्वारा, जिसमें मैन फाइटर जेट्स होंगे, F-35A होगा, 6th जनरेशन कॉम्बैट भी बनाया जा रहा है. मोरओवर ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज करेगा रेंज अपने क्रूड काउंटर पार्ट का यदि इसको इक्विप्ड किया जाए मिसाइल्स के साथ. इन अ लेट मार्च 2023, सर्विस एक्विजिशन चीफ एंड्रयू हंटर सेड द फर्स्ट iteration of the collaborative combat aircraft would enter the Air Force fighter fleet in the late 2020 as several years before. The next generation air dominance fighter Hunter also emphasized that the CCAS will improve not just the NGAD program but all the variants of the tactical aircraft. लेट मार्च 2023 में सर्विस एक्विजिशन चीफ एंड्रयू हंटर ने कहा था कि जो पहला आइट्रेशन होगा कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, वो एंटर करेगा एयरफोर्स में लेट 2020 में. कुछ सालों पहले नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर हंटर भी एम्फसाइज किया था CCAS को इंप्रूव करेगा केवल NGAD सिस्टम को ही नहीं, सारे वेरिएंट्स ऑफ टैक्टिकल एयरक्राफ्ट को. Candle had announced earlier this year that the Air Force planned to purchase at least 1,000 CCAS and maybe as many as 200 examples of future 6th generation combat fighter. As per plans that appear to be preliminary stage, 2 of these unmanned aircraft will be teamed with each of the 200 NGAD combat jets and 200 F-35AS जॉइंट स्ट्राइक फाइटर. कैमलिन ने कहा है कि जो एयरफोर्स है उसने प्लान किया परचेस करने के लिए 1000 CCA को और 200 एग्जाम्पल जो होंगे फ्यूचर 6th जनरेशन कॉम्बैट फाइटर को भी खरीदेगी. एज पर द प्लान जो कि अपेयर हुआ ऑपरेट किया जाएगा वो प्रीमिलरी स्टेजेस में, मतलब ये शुरुआती चरण में, और जो 2 अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो होंगे उनको टीम्ड किया जाएगा 200 NGAD कॉम्बैट जेट के साथ और 300 F-35A जॉइंट स्ट्राइक फाइटर के साथ. Concept art from the Lockheed Martin shows the F-35 Joint Strike Fighter at the top right flying with the various uncrewed aircraft Lockheed Martin. तो आप देख सकते हैं F-35 जो फाइटर जो जेट जो है अलग अलग जो Lockheed Martin ने ड्रॉ करके बताया ऐसा ही होगा. The figure was derived from assumed 2 CCAS as per 200 NGAD platform and an additional 2 for each of 300 F-35 for total of 1,000. Candle explained during a keynote address at the 2023 Air and Space Forces Association Warfare Simpson in Aurora, Colorado. कैंडिले ने समझाया है एक ड्राइंग के मदद से अरोरा कोलोराडो में, जहाँ पे जो फिगर है डिराइव किया गया था एंड अस्यूम्ड 2 CCAS जिसमें 200 NGAC प्लेटफॉर्म होंगे एक के लिए और एडिशनल 300 F-35 होंगे टोटल 1000 में से. द NGAD इज अ वास्ट प्रोग्राम एमिंग टू डेवलप द system that will incorporate manned jets, drones, and a new generation of networking technologies. It would be a distributed, customizable combination of sensor, weaponry, and other mission equipment, working as a team of formation that will be used in this program, together with far less expensive autonomous uncrewed combat aircraft. NGAD जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसका जो डेवलप करना है सिस्टम ऑफ सिस्टम को, जो कि मैन जेट, ड्रोन और नए जनरेशन के नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज को साथ में जोड़ेगा. ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कस्टमाइजेबल करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स को, वेपनरी को और मिशन इक्विपमेंट को. तो मिशन इक्विपमेंट भी होंगे साथ में जो कि वर्क करेंगे एक टीम के द्वारा. फॉर्मेशन होगा जो कि यूज किया जाएगा इस प्रोग्राम में
टुगेदर, जो कि कम महंगा होगा, ऑटोनोमस अनक्रूड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, मतलब इसमें पायलट को चलाने की जरूरत नहीं होगी. This makes the CCA more significant than ever for the US Air Force as the Chinese PLA continues to expand the capability. The possibility of a conflict between the two military superpowers is low but never zero. CCA जो है बहुत ज़रूरी है पहले से कभी अब अमेरिका के लिए, क्योंकि जो चाइना की जो सेना है वो अपनी ताकत को बढ़ाती जा रही है. जो पॉसिबिलिटी है युद्ध का अमेरिका और चाइना में वो अभी बहुत कम है, लेकिन ज़ीरो नहीं है. वो हो सकता है भविष्य में, हो सकता है 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, लेकिन उसके चांसेस हैं. Equipping thousands of these CCAs with a long-range JATM will seek to bolster the capability of these crewed, uncrewed fighter teams by ensuring enhanced lethality and survivability, which is the most crucial factor in a combat. However, the service does not have a roadmap for CCAs yet. जो हजारों CCA को लेने का लॉन्ग रेंज के साथ JAT में मिसाइल होगी, वो ब्लास्टर की कैपेबिलिटी क्रूड और अनक्रूड, मतलब बिना पायलट के भी और पायलट के साथ भी फाइटर टीम्स का, जो कि इंश्योर करेंगे इन्हांस्ड लिथलिटी और सर्वाइबिलिटी, मतलब जिंदा बच के ने के चांसेस 100% रहेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी वॉर में, किसी भी कॉम्बैट में. हाउएवर जो सर्विस है इसका कोई भी रोड मैप तैयार नहीं है CCA के लेने के लिए. दिस इज द फर्स्ट टाइम द US Air Force officials have notified that the AM-260 JATM will be equipped on the CCS Kendall. Also said that the USAF is still working on its future combat posture since the trade perception was dynamic and changing in accordance with China expanding capability. ये पहली बार है अमेरिका के एयरफोर्स ऑफिसर्स ने नोटिफाई किया कि AM-260 JATM इक्विप्ड होगा CCAS के साथ. और कंडाल ने ये भी कहा है कि जो USAF होगा वो वर्क करेगा अपने फ्यूचर कॉम्बैट पोस्चर के ऊपर, अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि जो ट्रेट है, धमकी है, डायनेमिक है, बदलते रहती है अकॉर्डिंग टू चाइना के साथ, और आने वाले समय में रशिया के साथ भी हो सकता है. AM-260 JATM is finally coming. ये आने वाला है आने वाले समय में. Even though this air dominance program has been kept classified by UASAF, media reports have revealed some basic details developed by Lockheed Martin in a collaboration with the US Air Force and Navy. The new weapon AM-260 long-range missile is a successor to the AM-120 advanced multi-medium range air-to-air missile. कुछ जानकारियाँ न्यूज़ के द्वारा दे दी गई हैं, जिसमें डेवलप किया जाएगा लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, जुड़े होंगे US एयर फोर्स और नेवी के कोलैबोरेटर होगा साथ में. न्यू वेपन AM-260 लॉन्ग रेंज मिसाइल हो और AM-120 से बेहतर होगा, जो कि एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है. द डेवलपमेंट ऑफ द चाइनीज PL-15, अ लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल विद अ डुअल पल्स रॉकेट मोटर, इज बिलीव्ड टू बी अ major motivator for the beginning AM-260 program by the US Air Force. This primary goal of the new AM-260 development is the outrage Chinese missiles. चाइना ने भी एक PL-15 नाम की मिसाइल को डेवलप किया, जो कि लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर है और बिलीव्ड है मेजर मोटिवेटर है बिगिन करने के लिए AM-260 प्रोग्राम अमेरिका एयरफोर्स के द्वारा. प्राइमरी गोल जो होगा नए AM-260 डेवलपमेंट का, वो आउट रेंज करना होगा चाइनीज़ मिसाइल को. ये है PL-15, जिसमें इस मिसाइल को लगाया गया है, चाइना ने बनाया नया नया, इसी के कारण अमेरिका भी बना रहा है. दिस सर्विस वांट्स टू यूज दिस मिसाइल टू रिप्लेस द AM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल विद अ न्यू लॉन्गर रेंज वेपन. The AM-260 will have a significantly longer range than the advanced medium range air-to-air missile. The US Air Force primary air-to-air gun. जो सर्विस होगी वो चाहती है कि जो मिसाइल होगा वो रिप्लेस करेगा पुराने AM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल को, जिसमें नए लॉन्गर रेंज वेपन होंगे. और AM-260 जो होगा ये इंपॉर्टेंट होगा, लॉन्गर होगा रेंज उसका दैन द एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल. US Air Force primary air-to-air वेपन होगा ये. Medium watchers discern that one of the main goal of the JATM program is to extend the range significantly. It seems to us sensible that the most recent AM-1203 AMRR-AM type, whose ranges is classified but is thought to range between 75 and 100 miles depending on the launch envelope and other variable, may be flown further by JATM. मिलिट्री वॉचर्स ने कहा है कि जो एक रीज़न है JATM प्रोग्राम में बढ़ाने का, वो है रेंज को लेकर. ये ऐसा देखा जाता है कि जो मोस्ट रिसेंट AM-120D3 है ARAM टाइप, जिसका रेंज जो है क्लासीफाई किया गया है 75 से 100 माइल दूरी तक, लेकिन ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है. वो लॉन्च एनवेलप पे डिपेंड करता है और अदर वेरिएंट पे, और जो है फ्लो करता है फादर बाय JATM, मतलब JATM जो उसको और रेंज बढ़ा सकता है. द Aurum AM-120D SIP-3 of PMA-259 सक्सेसफुली executed the final shot in the integrated test program from FA-18F at a NAS Point Mugu. तो आप देख सकते हैं जहाँ पे टेस्ट किया गया जिसमें सक्सेसफुल हुआ. It will probably also contain a multi-mod speaker. However, its performance and capability are kept under wraps. It likely has a long-burn rocket system that can fit inside the F-22's weapons compartment. ये जो है कंटेन करता है मल्टी-मॉड स्पीकर को, लेकिन जो परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी है ये अंडर रैप्स में है
और इसमें लॉन्ग बर्न रॉकेट सिस्टम है जो कि फिट करेगा इनसाइड F-22 वेपन कंपार्टमेंट में. USAF said that the J-ATM is the number one air delivered weapons priority for both Air Force or the Navy.